everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you for joining me and we are continuing with our March Celebrity Reads prediction for the month of March. तो इस सिलसिले में चलिए हम अपना कारवां और आगे बढ़ाते हैं और फाहमान का मार्च का prediction, मार्च की जर्नी देखते हैं. I'll be using this new card along with the old one that I use for the journey. So let's see. If you are coming from Sumbul's reading, then you already know it. So let's see. God's card as angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Farman for the month of March. What is that we can know? Choosing your path, all is possible. कुछ decision making लगता है कि हो रहा है, उसको करना पड़ेगा. रास्ते choose हो रहे हैं, रास्ता choose होगा. कुछ decision making है तो रास्ते खुलेंगे भी तो ना. So we need a gateway card for that. Interestingly enough, I have just started using this deck, bought the new one, and the way the readings are coming up, it's like, yeah, कुछ तो है, दरवाजा खुल रहा है. सुम्बुल के रीडिंग में भी कुछ इसी तरह का था कि ओके ये काम करोगे तो कौन सा गेटवे खुल रहा है, तो वो चीजें हैं. So let's see what kind of guidance we get from this beautiful deck. So, guidance coming for Farman for the month of March, dear angels. Can we please? No, yes, we have the card. And healing the past. And how true is that, guys? Healing the past. Why? Because now you have to choose the path. Probably you have chosen the path. किसी ने बोला कि उसने रास्ते choose कर लिए हैं. हो सकता है कि वो उसी रास्ते का बात हो रहा हो जो कि अभी तुरंत उसने डिसीजन मेकिंग किया है. हो सकता है कि मार्च में और भी डिसीजन मेकिंग के रास्ते खुल सकते हैं. ठीक है, तो चूजिंग अ पाथ, इट कुड बी एग्जैक्टली द सेम पाथ जो उसने अभी चूज किया है, या फिर और भी चॉइसेस मिल सकते हैं, वहां पे भी चॉइस करना पड़ सकता है. और सबसे पहले क्या होगा, आप कोई भी रास्ता चूज करो, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम अपने लेसन्स लेके आगे बढ़ें उस रास्ते पे, अपना बैगेज लेके आगे ना बढ़े. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग इन वन ऑफ द picker card readings that I released on Saturday. Single, ready to mingle kind of a thing, where in one of the reads, one of the pile, the message was, yes, you are moving out of the hole, but don't go out of this place with that baggage. These baggages, these challenges come in our lives to make us strong so that we can learn something out of it. There is no point carrying the baggage and moving out of that place. Carry the lessons of that baggage, don't carry the baggage. So exactly इस फाहमान को भी यही बोला जा रहा है, it's time to heal your past, no matter what it is. Did you remember the last week की जो reading थी उसमें क्या था? He was going up and down. माइंड में था बहुत, आगे पीछे काफी हो रहा था. और यहाँ पे आगे पीछे क्यों होता है? Why do we often go back in our past? Why is our past present in our present or even in future? और जैसा कि अभी मैंने बात की, we carry our baggage, we carry our past right through the doors of and into the future. So this is what it is. You don't have to carry the baggage of your past. You only have to carry what? The lessons. तो high time फाहमान को, I step into my future with strength and clarity. And how true is that, guys? यहाँ पे देखो, all is possible. He is trying to make some life decisions. कोई path choose कर रहा है. But कोई भी path, अगर आप उसको एक fools की, क्योंकि आप path choose कर रहे हो, you are starting something new. और जब भी आप new start करते हो तो what do you need? You need an attitude of a fool. You need to be curious. You need to be willing to take risk. You don't have to go with the judgment. You don't have to go with the hurt and the wound and the broken heart. So yes, the path will be presented to you, but are you healing the past so that you can move ahead with a lot of confidence, a lot of clarity, and not just that, but also a lot of strength. पास की चीजें आके कितने बार ऐसा हुआ है कि हमको अपॉर्चुनिटीज मिली है. लेट गो फाहमान एंड सुम्बुल. कितने बार ऐसे हमारे लाइफ में होता है जब हमको ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलता है, लेकिन हम अपने पास्ट को फ्यूचर समझ के उसको जाने दे देते हैं, सेल्फ डाउट में and all that. No, let go the baggage of the past. Carry only the lessons, because these lessons is what you have earned and learned, and walk with it, because this is going to be your
strength. So this is how you have to shift the perspective of your challenges. And it's all about perspectives. Beautiful. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी. तो जो भी रास्ता चूज करेगा, अगर अपने बैगेज को छोड़ के उसके लेसन्स के साथ, हीलिंग के साथ अगर आगे बढ़ता है, तो उसके लिए क्या है कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी. जो भी रास्ता चूज करेगा उस पे उसे मिलेगा अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. गुडी बैग्स मिलेंगे, लेकिन ओनली व्हेन वी लर्न आवर लेसन्स गाइस. कुछ भी फ्री में नहीं है. नथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री. ऑल राइट, अब हम करेंगे, कार्ड्स ले लेते हैं जल्दी से, क्विकली. See how interesting is that? I was just talking about these cards, and you have the 10 of exactly the same energy that I was talking. So energy दूसरे डेक से भी पकड़ता है. वाह, ग्रेट. चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको फायर वॉश दे दिया, क्लेंजिंग कर ली. अब आगे बढ़ते हैं, फहमान की जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं. वाओ, सी वन चैप्टर कमिंग टू फुल क्लोजर होने वाला है. अगर अपने बैगेज को लेके, जो कि हमने यहां पे देखा है, अगर बैगेज को देख के आगे नहीं बढ़ता, वाओ, 3 ऑफ सोर्ड भी आ गया, दिल टूटा था जो. देखो 2 ऑफ wands, एग्जैक्टली द सेम थिंग. डू यू सी हाउ बूम इज दैट? व्हाट मोर बूम यू वांट? हाउ मेनी बूम्स यू वांट? तो यहाँ पे देखो, रास्ता चूज करने का मौका मिलने वाला है, या फिर ऑलरेडी चूज किया है, और भी रास्ते मिल सकते हैं. जो भी मिल रहा है रास्ता, वहां पे क्लियर हेड से जाना है, बैगेज लेके नहीं जाना. जब क्लियर हेड से जाते हो, अपने चैलेंजेस को, अपने बैगेजेस को लेसन्स बना के लेके जाते हो, तो ये ब्यूटीफुली फुल सर्कल हो जाएगा, और आपको जो प्रॉस्पेरिटी हमने इस डेक के एंड में देखी थी वो मिल जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्मार्ट एंड नॉट वैल्यूइंग. टेंशन से बाहर निकल के, ओवर थिंकिंग नहीं करके, जॉय में रह के अपने लेसन्स लर्न करो. किंग ऑफ पेंटिकल्स बनो. प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया था ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द बाप ऑफ प्रॉस्पेरिटी, राइट? सो या, दैट इज व्हाट फॉर वेट फॉर हिम. स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है. डोंट लेट योर पास्ट मेक यू वीक. दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग. दैट इज व्हाट द मैसेज वी आर गेटिंग. एंड या, दैट इज इट. टावर का कार्ड, लवर का कार्ड, लवर एंड टावर. टावर का कार्ड सुम्बुल के रीडिंग में शो हुआ है, बट दैट आई फेल्ट मोस्टली वॉज फॉर हर फैमिली और फादर. बट देखते हैं क्या है. सो डियर एंजल्स, God's guidance angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the Farman fans. What is that they can know for Farman's smart journey? Thank you and thank you. बार बार यही आ रहा है. Something really this thing. Wow, something is coming beautifully full circle actually. एंड इल्यूजन से बाहर निकलते हुए तभी तो ये फुल सर्कल हो पाया है ना. गुड. सबकॉन्शियस लेवल में क्या है? ट्रैपमेंट नहीं है. ट्रैपमेंट से हम बाहर निकल गए हैं. वेरी गुड. पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में आपने किंग ऑफ सोर्ड लेके क्या किए? इल्यूजन्स को काटा छाटा, हटाया. दुख दर्द हुआ, ठीक है, दिमाग से काम लेंगे, दिल से हमेशा काम लेने से काम नहीं चलता है, राइट? तो सुम्बुल को बहुत ही इंटरेस्टिंगली इनफ सुम्बुल को बार बोला जा रहा है क्या? आप अपने दिल से काम लो, दिल की सुनो, इनर विजडम की सुनो, इनर गाइडेंस की सुनो, इनर वॉइस की सुनो. पर फहमान की क्या एनर्जी है? किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आगे बढ़ना है तो कैसे लिए जाएंगे. नॉट इमोशनल डिसीजंस नहीं ले रहा है वो, इसीलिए वो अपने इल्यूजन्स को काट पाया है, अपने खुद के ट्रैप जो उसके दिमाग में चलते थे उससे बाहर निकल पाया है, उस ट्रैप को भी काट पाया है, और अपनी एक जर्नी यहाँ पे कंप्लीट करके शायद रास्ता चूज करके आगे बढ़ेगा. कॉन्शियस लेवल पे देखते हैं क्या है. बूम, न्यू बिगिनिंग. ये वो बिगिनिंग है जो कि उसको ऑलरेडी मिल गया होगा, क्योंकि वो एस ऑफ वॉन्ड कॉन्शियस लेवल पे है, तो शायद उसे वो न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी मिल चुका है जिसपे वो काम कर रहा है. न्यू और बिगिनिंग्स भी आ सकते हैं, यू नेवर नो. गोइंग फॉरवर्ड इज लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी. नाउ डू यू सी हाउ द मैसेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इज रिपीटिंग फॉर हिम. किंग ऑफ पेंटिकल्स का शो अप होना शफल में, इस डेक के बैक में प्रॉस्पेरिटी वाला कार्ड था. नाउ अगेन गोइंग फॉरवर्ड क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बोलते हैं ना कि 10 उंगली, क्या बोलते हैं,
घी में और सर कढ़ाई में, समथिंग लाइक दैट, मैंने कि लॉट ऑफ अबंडेंस, मनी, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें आ रही हैं यहाँ पे। ये न्यू बिगिनिंग इज गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर हिम। और 15th, ये क्योंकि ये रिसेंट फ्यूचर है, मार्च का प्रिडिक्शन है, तो ये एनर्जी आप कब तक देख सकते हैं? 15th के अराउंड ये एनर्जी शो अप होने लगेगी शायद। सो दिस न्यू बिगिनिंग इज एब्सोल्युटली बूम फॉर हिम। एटीट्यूड क्या है सलमान भाई, फहमान भाई का?